can I request everyone to please keep on continuing your claps? I also request our speaker, young chartered accountant from Delhi, dealing in indirect tax, Shri C.A. Puneet ji, to be on dais. We would like to felicitate all our guests who are available on dais with a bouquet and memento. For that, I request Shri Rakesh Sisodia ji and Rajendra Taneja ji. Rakesh Sisodia. Rakesh Sisodia ji. Sir, please felicitate Shri R.K. Guruwala ji, sir, with a bouquet of flowers. Rakesh ji is from Chittorgarh. अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेंद्र तनेजा जी से, वो फेलिसिटेट करें हमारे गेस्ट श्री R.K. गुरुवाला जी को मोमेंटो के द्वारा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप तालियों जारी रखिए। उसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से, वो स्टेज पे आए। करौली से श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। अभिषेक शर्मा फ्रॉम जयपुर। अभी राजेंद्र जी यहाँ पे नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अभिषेक शर्मा जी से जयपुर से, वो स्टेज पे आए और हमारे गेस्ट की नोट स्पीकर अतुल गुप्ता जी को फेलिसिटेट करें विद फ्लावर बुके। राजेंद्र जी अब आ गए नहीं होंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री दिनेश अग्रवाल जी से झुंझुनू से, श्री दिनेश अग्रवाल जी फ्रॉम झुंझुनू टू बी ऑन स्टेज विद अस एंड फेलिसिटेट आवर गेस्ट विद अ मोमेंटो। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र महेश्वरी जी से, वो स्टेज पे आए। किशनगढ़ से श्री धर्मेंद्र महेश्वरी जी। Now I would like to request Shri Vinod Patni ji to be on stage with us and felicitate our guest Shri C.A. Puneet ji with a token of memento. पुनीत जी को आगे लास्ट में गुरुवाला जी को हैंडल करोगे क्या बोलते हैं? हाँ, उन्हीं को गुरुवाला जी को हैंडल। बोलो कुछ भी। हाँ। Now I would request Shri Guruwala ji to take over the session with mic. थोड़े माइक देखिए चालू है। Good afternoon, friends. Now it is 4:30 post-lunch session. Session on service tax. Two eminent speakers are here. अतुल जी, प्रदीप जी। अतुल जी को थोड़ा जल्दी जाना है, तो ये चाह रहे हैं कि आधा घंटे में अपना सम कर दें, एक दो क्वेरीज ये ले लेंगे और आप जैसा चाहेंगे प्रदीप जी अवेलेबल है क्वेरीज के लिए भी, लेक्चर के लिए भी। सर हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। एक और ले लें सर। सर्विस टैक्स, दिस कंट्री वाज रनिंग as indirect tax for excise, customs
and of course gold control too. But in the year 1994, it was thought by the Parliament to come with the enactment in the Finance Act by adding the provisions for service tax. Only 4 services were enacted originally, and thereafter many more services were put in the exchequer, and now it is the era of negative list. So barring the few services, every service is now under the service tax net. The threshold limit is 10 lakhs. I don't know why trade is not asking for increasing the threshold limit in the era of high price rising. But the Senate provisions are there, and now GST is also coming. It will not be burden on the we people or the service tax collector. In fact, it is collected and paid. Ultimate impact on the consumer. But the procedural aspect in service tax is very much. There are charging sections, there are machinery sections, there is procedure. If you are lacking in procedure, department personnel are not prepared to accept your fault, and they deny for the SANVAT credit. They don't care for the charging section at that time. We are facing certain appeals, raising the issues before the authorities. Of course, ultimately the benefit is given to the assessee, to the appellant, but by that time the demand is there and the harassment is also there. One big issue regarding the indirect taxes is if the disputed demand exceeds 50 lakhs of rupees, whether the notice has been issued or not, even whether a show cause has been issued or not, there is a provision of prosecution or even the arrest. Bad provision in my view. The experts are here, we will hear them, and in my concluding remark, I will come out with certain other issues. I invite Sri Pradeep ji for his deliberation. Pradeep ji. Sorry, Atul ji. A very good evening, ladies and gentlemen. The respected R.K. Saab, my co-speaker Puneet ji, all the distinguished personality from the organizers, all the 4 chambers, All India Tax Federation of Tax Practitioners, Rajasthan Tax Consultant Association Jaipur, and Jaipur Tax Bar Association, senior member of the profession, friends, ladies and gentlemen. At the outset, I am thankful to the associations and the organizers for giving me this opportunity to come and speak some of my thoughts, to share some of my thoughts with all the esteemed colleagues present here. सर, अपने स्टाइल से जैसे मैं बात करता हूं वैसे ही बात करूंगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों से सर्विस टैक्स के बारे में और जो हमारे को टॉपिक दिया गया है चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज, रीसेंट चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज की बात की गई है, वो हम डिस्कस करें। 2-3 बातें आप लोगों को कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सबसे पहली बात, आप लोगों का अभी ये सेशन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर जो अमेंडमेंट्स को लेके अभी आप लोगों ने डिस्कस किया, मैं यहां पर अवेलेबल था। मुझे उसमें सिर्फ आप लोगों को एक अपडेट देना है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से CSR के ऊपर एक गाइडेंस नोट जो है वो मे बी विद इन अ डे और टू दैट विल बी रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वेयर इन ऑल दीज इश्यूज whether a provision has to be made in case the expenses are not being incurred, what about the accrual kind of a things, what will be the ineligible or ineligible expenses in case of a CSR, all issues are being taken care in that particular guidance note. So my request to each one of you, and which is being prepared in consultation with the ministry, so I request each one of you to read that particular guidance note while doing the compliance in relation to the CSR. दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे जो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन्होंने एक बात कही कि अभी हमारी कंट्री जो है वो 142nd नंबर पे आती है इन डूइंग द ईज ऑफ बिजनेस. And it is a reverse proposition that in case the more ease of doing the business will be there will be the less opportunity available for the professionals. पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग कई बार बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स की जो है वो प्रोस्पेरिटी किस चीज में है साहब, जितनी ज्यादा इलनेस होगी जितनी ज्यादा डिसीज होंगी. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि टैक्स प्रोफेशनल्स की, मैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी सभी लोगों को इंक्लूड कर रहा हूं कि हमारा यह मानना है, हम लोग कई फोरम पे डिस्कस करते हैं कि जितना ज्यादा प्रोस्पेरिटी होती है, जितना ज्यादा हमारा एसएससी ग्रो करता है, प्रोफेशनल भी उसके साथ उसी तरीके से ज्यादा ग्रो करता है. तो आई बिलीव कि अगर हमारी कंट्री डेवलप होती है, अगर हमारा देश डेवलप होता है और हम लोग जो है वो एक सुपर पावर के रूप में, एक एडवांस कंट्री के रूप में डेवलप होते हैं, सो हार्डली मैटर कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, बट आई बिलीव दैट देयर विल बी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी इन केस द कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड. तीसरी बात जो आज के सेशन की है, मैं अभी पुनीत से बात कर रहा था कि हमारे को जो टॉपिक है, हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो रखा है that is the recent challenges and the controversies in the regime of service tax. Friends, मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली खुद विटनेस किया कि कल हमारा जो है वो जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुआ. मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म से, इस बिरला ऑडिटोरियम के प्लेटफॉर्म से कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया जब भी मेरे को मौका मिला आने का, कि अगर हम डायरेक्ट टैक्स को कंपेयर करें विजा विज द इनडायरेक्ट टैक्स, तो आज भी डायरेक्ट टैक्स में जहां कलेक्शन करीबन 8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है, लेकिन मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं इंक्लूडिंग द वैट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन द जीएसटी विल बी देयर इट विल सबस्यूम द वैट एज वेल. इवन टुडे द कलेक्शंस आर मोर देन double as compared to the direct tax regime. It is more than 17 lakhs crore of rupees. और जब जीएसटी आएगा, I believe that it will cross the parameter of even 20 lakhs crore of rupees. और उस regime के बारे में, चाहे वो हम आज की regime की बात करें या future regime की बात करें, I always wish that we should not miss the bus. We should become the pioneer from the day one. We have to do the research from the day one. In the upcoming regime of GST, it is very difficult to discuss the challenges and the controversies. Why I am saying so? I always feel that we should motivate our audience. We should always feel that we should encourage our audience that yes, we have to do in the practice of we have to enter into the practice of indirect taxes. And when we are discussing about the controversies and the issues only, sometimes it demotivates. Oh, there are lot of issues. इसमें तो इतने सारे issues हैं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है. आज अतुल इतने सारे issues या पुनीत भाई इतने सारे issues बता रहा है. So my dear friend, when I will be justifying the topic which is being assigned to me, कि मेरे को बहुत सारे issues या challenges आपके साथ बताने हैं, मेरी और पुनीत की एक जो थोड़ा सा प्रयास रहेगा वो ये कि हम लोग आपके साथ कहीं ना कहीं पर कुछ issues जो है वो आपके साथ डिस्कस करके जाएं.
जो इश्यूज आपको अपनी प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को, अपने एसएससी को सर्व करने में इफेक्टिवली यूज किए जा सके। एंड देन फाइनली इनकेस आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज हैं जो आप स्लिप भेजना चाहें हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को, तो वो हम लोग जो है वो टैकल करेंगे। माई फ्लाइट इज देयर एट 7 o'clock, सो आई हैव टू मूव एट अराउंड मे बी 5:40 और 5:30। उसके बाद भी पुनीत जी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों का सबका परमिशन होगा। नाउ फ्रेंड्स, अपने टेक्निकल टॉपिक की बात करें, अपने डिस्कशन की बात करें, तो सर हम लोग अगर सर्विस टैक्स पर से जो हमारे फाइनेंस एक्ट 1994 से शुरू हुआ, उसके अंदर अगर हम लोग चैलेंजेस या कंट्रोवर्सीज की बात कभी भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, इट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू टेक केयर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। मैं आज सर्विस टैक्स की बात करने आया, मैं आपसे कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा हूं, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं पर सबसे पहले मेरे को जरूरत है दैट आई शुड अंडरस्टैंड ओके वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं आपसे बात करने लगूं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेड का कैसे होगा, इन केस देयर इज अ नेगोशिएशन हाउ टू क्लेम द एक्सेस सर्विस टैक्स पेड, I should first understand which law I am referring, which rule I am referring with you. तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं पूरे के पूरे रिजीम के बारे में, क्योंकि कंट्रोवर्सीज का मतलब, चैलेंजेस का मतलब पूरे रिजीम के बारे में डिस्कस करना, और क्वेश्चन भी आप लोगों के पूरे रिजीम के बारे में आने चाहिए। सबसे पहली जो जरूरत है वो ये कि सर्विस टैक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। नंबर 1 इज द टैक्सेबिलिटी, that how to determine the taxability prior to the negative list and after the negative list। 1 जुलाई 2012 से पहले हम टैक्सेबिलिटी कैसे देखते थे, और आज हमें 1 जुलाई 12 के बाद टैक्सेबिलिटी कैसे देखनी है, और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं जो आज हमें चैलेंज है हमारे लिए, हमारे को उसके अंदर जो है वो कंट्रोवर्सीज हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि हम नेगेटिव लिस्ट की बात करें या मेगा एग्जम्पशंस की बात करें, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, यह अपने आप में कंट्रोवर्सी है। क्या राइस उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया। रेंट और रेंटिंग और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, यह अपने आप में कंट्रोवर्सी है। ये कहां है, ये है हमारी टैक्सेबिलिटीज की कंट्रोवर्सीज, चैलेंजेस कि हमें टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करनी होती है और वहां पर कैसे कैसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो सर्विस टैक्स में आपको एक्सपर्ट बनाएगा, वो है कंप्लायंसेस। और कंप्लायंसेस के लिए मैंने हमेशा बताया कि हमारे पास 5 अलग अलग पिलर्स हैं। जो पहला एस्पेक्ट है सर्विस टैक्स के अंदर कंप्लायंसेस का, वो है हमारा रजिस्ट्रेशन को लेके, रिटर्न्स को लेके, कि मेरे को अगर मेरी एक्टिविटी टैक्सेबल है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, रिटर्न फाइल करना है, पेमेंट करना है। एक्सेस पेमेंट हो गया तो आई हैव टू क्लेम बैक द एडजस्टमेंट, आई हैव टू एडजस्ट द एक्सेस सर्विस टैक्स पेड, रिवाइज रिटर्न करना है। ये सब कहां है, ये है सर्विस टैक्स रूल्स 1994 के अंदर। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है हमारा कि अगर मेरी एक्टिविटी टैक्सेबल है, मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, इनवॉइस रेज करना है, दैट ओके ऑन व्हाट वैल्यू आई हैव टू चार्ज द सर्विस टैक्स। मैं टोटल इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, 2 करोड़ का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, मुझे उस वैल्यू को कैसे बाइफरकेट करना है मटेरियल से, क्योंकि मटेरियल पे मैं ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी वैट में पे कर चुका। लाइकवाइज इन केस आई एम इंकरिंग सर्टेन एक्सपेंसेस एंड आई एम क्लेमिंग बैक एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, वेदर आई हैव टू चार्ज द सर्विस टैक्स ऑन द सेम और नॉट। आई एम डीलिंग इन अ बार्टर सिस्टम। मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया, बदले में उसने मुझे एक टेलीविजन सेट दे दिया। नाउ हाउ टू वैल्यू दैट कंसीडरेशन रिसीव्ड इन काइंड। ऑल दीज इश्यूज आर, हमें इन इश्यूज के ऊपर अगर कभी भी एक्सपर्टाइज डेवलप करनी है तो कहां जाना है साहब, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006। उसके बाद जो तीसरा हमारा एस्पेक्ट होता है वो है हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, कि मेरी अल्टीमेटली सर्विस टैक्स की लायबिलिटी एक्रू कब होती है। ठीक है साहब, मेरे को सर्विस टैक्स 5 तारीख को जमा कराना है, 6 तारीख को जमा कराना है, इन केस ऑफ ऑनलाइन, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट व्हेन माय लायबिलिटी विल एक्रू, आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, द पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द लायबिलिटी, इज द पॉइंट व्हेन माय लायबिलिटी विल एक्रू। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंदर मेरी लायबिलिटी एक्रू कब होती है। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज व्हेन आई एम डीलिंग विद, इन केस
I am importing certain services, for example, the same is the case of a reverse charge. I have to pay the royalty outside. इन सब केसेस के अंदर मेरी सर्विस टैक्स की लायबिलिटी कौन सी डे को एक्रू होती है, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011. एंड फोर्थ वन इज दैट प्लेस ऑफ प्रोविजन, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस. कंट्रोवर्सीज हैं पॉइंट रूल 9 को लेके, इंटरमीडियरी सर्विसेज को लेके, वेदर द कमीशन एजेंट विल बी देयर और नॉट, विल बी कॉल्ड एज ए इंटरमीडियरी और नॉट. तो मेरी सर्विसेज कब एक्सपोर्ट मानी जाएंगी, कौन सा रूल मेरी सर्विस पे एप्लीकेबल होगा, वाइस वर्सा इन केस ऑफ इंपोर्ट, वी हैव टू मास्टर थ्रू द प्लेस ऑफ प्रोविजन रूल्स 2012. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैनवेट क्रेडिट. कितने तरह का क्रेडिट होता है, उन क्रेडिट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या एक्सक्लूजन्स है, मुझे किस इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट मिलेगा, मतलब सैनवेटेबल इनवॉइस कौन सी है, किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा, उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, इनवॉइस कौन सी होंगी जो सैनवेटेबल इनवॉइस कहलाएंगी, और इन केस सम डिफॉल्ट व्हाट आर द पेनल्टी प्रोविजंस. ये सारी बातें जो है कहां लिखी है साहब, सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 के अंदर. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के पास अभी जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं आप लोगों से अगले 15 मिनट में मैं आपसे 50 तरह की क्वेरीज, 50 तरह के चैलेंजेस या कंट्रोवर्सीज डिस्कस कर सकता हूं. हम लोग जो है वो एक बार के लिए, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए 5-10 मेजर इश्यूज मैं आपके सामने ले रहा हूं. एंड देन आई विल कंसेंट्रेट माई सेल्फ ऑन वन प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन. सैनवेट क्रेडिट का एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए रूटीन में, आपकी सर्विस में, प्रैक्टिस में आपके काम आएगा. जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आज की तारीख में आप सब लोग फेस करते हैं वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेड को लेके. सर लेट अस से मैंने जो है वो 2 लाख रुपए का किसी को इनवॉइस रेज किया. आप सब लोग इस चीज को फेस करते होंगे, जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग किस तरीके से उसको डील करते हैं. बड़ा सिंपल सा और सिंपलेस्ट मैं जो इशू है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बट हाउ वी आर टैकलिंग द सेम वी नीड टू अंडरस्टैंड. मैंने 2 लाख रुपए का किसी को इनवॉइस रेज किया, 24,000 रुपए मैंने उसके ऊपर सर्विस टैक्स एक्रूवल बेसिस पे मैंने उसके ऊपर सर्विस टैक्स जमा करा दिया, बिकॉज माई टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs. जो 10 लाख कह रहे हैं सब आंसर चेक कर लीजिएगा कि अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो ही मेरे को एक्रूवल सिस्टम पे जाना है, अदरवाइज आई कैन गो इनटू ना कैश सिस्टम. तो अगर मेरी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, मैंने 2 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया, 24,000 रुपए सर्विस टैक्स मैंने उस पर जमा करा दिया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज सेइंग मैं आपको कुछ पैसा नहीं दूंगा, आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, मेरे को आपको 1 रुपया भी नहीं देना है. या दूसरी ऑप्शन है वो बोलेगी नहीं, मुझे इसमें पार्शियल डिडक्शन करनी है और मैं इसका आपको 1.5 लाख रुपया पे करूंगा. नाउ हाउ यू विल बी एबल टू एडजस्ट दैट एक्सेस सर्विस टैक्स पेड. एक केस में जहां पर 0 रुपया मिला तो वहां तो 24,000 रुपया ही एक्सेस चला गया, और दूसरा केस है जहां पर आपको 1.5 लाख मिला, मतलब आपको 18,000 रुपए जमा कराना था पर आपने 24,000 रुपीज जमा कराया है. तो ये 6,000 रुपए का जो एक्सेस सर्विस टैक्स पेड है वो मुझे कैसे एडजस्ट करना है. सर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके मित्र जरा आप चेक करिएगा करते हैं, वो कहते हैं इसमें क्या है, इनवॉइस कार्ड दूसरी इनवॉइस बना दे 1.5 लाख की, इसमें इशू क्या रह गया, और इस इनवॉइस को अकाउंट फॉर ही नहीं करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, आई विश टू क्लैरिफाई यू, आई विश जस्ट टू अपडेट यू कि आपने जो सर्विस टैक्स का इनवॉइस एक बार इशू कर दिया, अब उस इनवॉइस को आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस इनवॉइस को जो है वो रिडंडेंट बना के एक नया फ्रेश इनवॉइस इशू कर दें. हमारे पास रूल 6 सब रूल 3 के अंदर एक प्रोविजन है कि इन केस यू आर रिफंडिंग द मनी ऑफ एडवांस और रिसीव्ड और देयर इज ए नेगोशिएशन, तो आप एक क्रेडिट नोट के माध्यम से आप एक क्रेडिट नोट इशू करके उस एक्सेस सर्विस टैक्स पेड को, लेट अस से कि आपने जो है यहां पर 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया, तो उस 50,000 रुपए के क्रेडिट नोट के माध्यम से आप उस 6,000 रुपए को जो उस पे आपने एक्सेस जमा करा दिया, आप अपनी किसी फ्यूचर लायबिलिटी के अगेंस्ट में उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं. दैट इज देयर अंडर द रूल 6 सब रूल 3 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल्स 1994. लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आपका वो बैड डेट हो गया, यानी कि आपको 2 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं मिला, तो आज का जो प्रोविजन है, 2 इंस्टीट्यूट ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस केस में भी हमारे को जो है वो लीनियंट व्यू रखना चाहिए और इसका कोई मोडालिटीज डेवलप करनी चाहिए. पर आज की तारीख में उस केस में उस 24,000 रुपए के लिए आपके पास कोई एडजस्टमेंट का प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, एंड यू हैव टू गो फॉर अ रिफंड क्लेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट. जो दूसरा इशू है जो आज की तारीख में हम सब लोगों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर फॉलो करने की जरूरत है,
जो हम लोगों को समझने की जरूरत है और जो आप सभी लोगों के लिए एक चैलेंज के रूप में खड़ा हुआ है, वो है रूल 4 सब रूल 7 ऑफ द सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। जरा ध्यान से समझिएगा क्या इशू है, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फिर हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। सर रूल 4 सब रूल 7, मैं सिर्फ 2-3 इशू ले रहा हूं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करके आई विल हैंड ओवर द माइक टू द कोऑर्डिनेटर फॉर द योर क्वेरीज, और जो भी अपनी क्वेरीज रहेंगी उनको आंसर देने के बाद वी विल मूव अहेड। सर रूल 4 सब रूल 7 ऑफ द सैनवेट क्रेडिट रूल्स की बात करता है, वो करता है कि आपको क्रेडिट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे मिलता है। जरा ध्यान से समझिएगा, अभी तक हमारे पास इस पिछले बजट से पहले क्या प्रोविजन था सर, कि हमारे पास जैसे हम लोग सर्विस टैक्स जो है वो पे करते हैं, किस बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे पे करते हैं। नॉर्मली हमने जैसे ही बिल रेज किया, हमने अगले महीने की 5 तारीख को या 6 तारीख को जो भी केस बनता है, लेट अस से कंपनी की बात करते हैं, हमें उसका सर्विस टैक्स जमा कराना होता है। इसी तरीके से जब मैं क्रेडिट लेने की बात करता हूं तो मुझे क्रेडिट कैसे मिलता है साहब, इमीडिएटली होना एक्रूअल बेसिस, कि जैसे ही मेरे पास इनवॉइस आया, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, एग्जांपल की बात करें कि 10 अगस्त को मेरे पास एक इनवॉइस आया, तो मैं उस इनवॉइस के ऊपर जितना भी सर्विस टैक्स बनता है वो मैं इमीडिएटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सैनवेट क्रेडिट के अंदर मैं ले सकता हूं विदाउट इवन पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर। हां, एक प्रोविजन है कि मैंने अगर 10 अगस्त के बिल के ऊपर 10 सितंबर, 10 अक्टूबर और 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, यानी कि मैंने 10 नवंबर तक अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो मुझे उस क्रेडिट को रिवर्स करना है, और मैं जब भी उसकी पेमेंट करूंगा बाद में फ्यूचर में, तो मैं उस क्रेडिट को दोबारा क्लेम कर सकता हूं। अब सर जो हमारा इस बार का जो बजट था, फाइनेंस बिल 2014 की बात करें, 2 नंबर यानी कि जो फाइनल वाला बिल था, एक तो पहले हमारा आया था इंटरिम बजट, अब जो फाइनल बजट जुलाई में आया था, उसमें उन्होंने एक प्रोविजन इंसर्ट किया जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पर आपको एक वो दे रहा होगा, हिट दे रहा होगा। वो क्या, कि आपको क्रेडिट लेने की जो लिमिट है आपकी, वो केवल और केवल 6 महीने की है। ध्यान है सर आपको क्या कह रहा हूं मैं सर, आप साथ हैं मेरे सर, नहीं? तो आपके पास जो हमारा जो प्रोविजन था वो क्या था सर, उन्होंने बोला रूल 4-7 के जो है वो प्रोविजन के अंदर कि आपको जो क्रेडिट है वो इनवॉइस की डेट के 6 महीने के बाद आपको नहीं मिलेगा। जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कि अगर मेरी इनवॉइस जो है 5 जनवरी की है तो मुझे 5 जुलाई के बाद उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर इसके अंदर 2 इश्यूज थे, जो 2 इशू हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, जरा आप समझिएगा, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मान लीजिए मेरे इसी एग्जांपल के अंदर जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि 10 अगस्त का मेरा बिल था, मैंने 10 नवंबर तक उसका जो है वो पेमेंट नहीं किया, मेरे को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ा। तो उस केस में जब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, लेट अस से मैं उसकी पेमेंट 1.5 साल बाद करता हूं, तो क्या मुझे उस बिल का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि बिल कब का है, 10 अगस्त का है, और मैं क्रेडिट फाइनली कब ले रहा हूं, 1.5 साल बाद। तो क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह बात डिपार्टमेंट ने अभी एक रिसेंटली एक जो है वो क्लैरिफिकेशन इशू करके उन्होंने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक बार जब आपने इसका क्रेडिट ले लिया, यानी कि 10 अगस्त के बिल का आपने 10 अगस्त को क्रेडिट ले लिया, आपने नॉन पेमेंट की वजह से उसको रिवर्स भी कर दिया, लेकिन वो क्रेडिट आपका कहीं ना कहीं पर आपकी बुक्स में स्टैंड कर गया, एंटर कर गया, तो अब उसके बाद आप चाहे उसको 2 साल बाद भी पेमेंट करें, आपका उसका क्रेडिट लेते वक्त वो 6 महीने की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सर्कुलर तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को क्लियर हो गया। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपने अपने एसएससी को क्या बोलना है सर आज के बाद? जरा ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, कि आपने जैसे ही बिल आए, इससे पहले कि वो लैप्स हो जाए, उसका क्रेडिट ले लीजिए, पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसको रिवर्स कर दीजिए, देन यू विल नॉट लूज एनी क्रेडिट इन अ फ्यूचर। जो दूसरा इशू है सर, जरा वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये कि ये जो प्रोविजन है, क्योंकि ये प्रोविजन जो है वो 1 सितंबर को एप्लीकेबल हुआ है, ये प्रोविजन प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यानी कि जो इनवॉइस मेरे को जनवरी 2014 में इशू हुआ था, क्या उसका क्रेडिट में अब आज की तारीख में अगर मैं लेने लगता हूं, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर मैं उसका क्रेडिट आज दिसंबर के अंदर लेने लगता हूं, तो क्या उसको 6 महीने वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, या केवल और केवल वो इनवॉइसेस रहेंगी इसके लिए जो 1 सितंबर के बाद इशू होंगी? आपके पास कई बार ऐसा होगा, आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जो 2 साल से पुराने हैं,
समझिए मेरी बात को ध्यान से। आपके पास ऐसा कई बार होगा कि 2 साल पुराने डेटर्स हैं, आपने उससे कहा भैया पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, उसने बोला सर आज पेमेंट अगर दूंगा तो यानी कि मेरा 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया, मुझे तो असाइनमेंट मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि मुझे तो असाइनमेंट मिलेगा नहीं, तो असाइनमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे पेमेंट देने में प्रॉब्लम है। आप एक काम करिए, फ्रेश बिल इशू कर दीजिए आज की डेट में। समझ रहे हैं? पहली बात तो क्या आप फ्रेश बिल इशू कर सकते हैं? मैंने अभी अभी रूल 6(3) के हिसाब से आपको बताया, और आपको बताया कि आप इस तरीके से बिल को कैंसिल नहीं कर सकते, आइदर यू हैव टू गो फॉर अ बैड डेट और फॉर अ क्रेडिट नोट। ठीक है साहब, पहली बात। दूसरी बात, क्या जरूरत है, वेदर इट इज नेसेसरी। सो आई जस्ट विश टू क्लैरिफाई ईच वन ऑफ यू माय फ्रेंड्स कि ये जो प्रोविजन है जिसके अंदर बोला गया है कि 6 महीने की, आपको 6 महीने के बाद किसी भी बिल के ऊपर असाइनमेंट क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल उन इनवॉइसेस के ऊपर है जो 1 सितंबर 2014 के बाद इशू होंगी। जो इनवॉइसेस हमारी उससे पहले की इशू हुई है उनके ऊपर यह प्रोविजन जो है रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी बात जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, देन आई विल कंक्लूड माय डिस्कशन, बिकॉज हमारे पास समय लिमिटेड है। आज हमारे को जो है वो कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग जो है वो लंबी डिस्कशन करेंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर पूरा इन लेंथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू हाईएस्ट लेवल। जो तीसरा इशू रहता है सर हमारे सबके सामने चैलेंज है। मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था तो मैं चैलेंज आपको बताना चाहूं तो चैलेंज है कि सेल ऑफ प्लॉट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, उस पर पीएलसी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, फ्री सप्लाई के ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। समझ रहे हैं सर? आपको इतने सारे इश्यूज हैं हमारे पास जो सर्विस टैक्स के अंदर हर वक्त हमारे को एक माइंड बॉगलिंग या एक कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की रिक्वायरमेंट करते हैं। पर मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं आपको चैलेंजेस बता बता के, प्रॉब्लम्स बता बता के डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि मैं आपको, आप जाएं तो यहां से बोले भाई साहब बेकार लो है, छोड़ो अपनी प्रैक्टिस ही ठीक है। वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिस इनटू द इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द फ्लेवर कि यस देयर आर इशू बट वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू मूव अहेड। हमें आगे चलना है, हमें आज यहां पर नहीं, हमें जीएसटी के अंदर भी जल्दी से जल्दी जो है वो आगे चलना है। दोस्तों इससे पहले मैं तीसरे इशू पे जाऊं और जीएसटी के बारे में मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया तो मेरे मन में कुछ बात आई जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आज की तारीख में चेयर करता हूं। आप लोग जीएसटी के ऊपर जब भी पढ़ना चाहें, जो भी आप डिस्कस करना चाहें, थोड़ी सी भी डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 250 पेजेस का बैकग्राउंड मटेरियल जीएसटी के ऊपर बना के साइट पे अपलोडेड है आईसीआई की, तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। दैट इज अ वेरी गुड मटेरियल विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी। नंबर 2, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है उसके ऊपर जो सजेशंस भेजे गए थे दैट इज आल्सो अवेलेबल। और आप लोग बताना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी जो हमारी आईसीआई की है उसने इस वर्ष में 2014 की बात कर रहा हूं, अभी तक वो 99 प्रोग्राम्स जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स मेंबर्स के बीच में नॉलेज डिसेमिनेट करने के कर चुकी है। और जो 100वां प्रोग्राम है वो 12 जनवरी को बॉम्बे में होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एक नेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट की सपोर्ट के साथ एक जीएसटी पे स्टैंडर्ड पीपीटी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें नेशनल लेवल पे 147 की 147 ब्रांचेस में अगले 1 महीने के अंदर जीएसटी पे अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उन मटेरियल को पढ़ें, यूज करें। सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, इवन अपने एडवोकेट भाई साहब के भी सबके लिए अवेलेबल है। एनीबडी कैन गो डाउनलोड, यूज, रीड, रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट। सर तीसरी बात जो मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो हम सभी लोगों के लिए चैलेंज रहती है, वो रहता है प्रपोर्शन ऑफ असाइनमेंट क्रेडिट। कि लेट अस से मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरी टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए की। आपसे मैं पूछ लेता हूं, चलिए आप बताइएगा साहब कि 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, मेरा गाड़ियों का एक शोरूम है, 1.5 करोड़ की मेरी सेल है और 50 लाख रुपए की मेरी सर्विस है। ठीक है साहब, 1.5 करोड़ की मेरी सेल है, 50 लाख रुपए की मेरी सर्विस है, यानी कि 50 लाख पे मुझे 6 लाख रुपए की मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, और मेरे पास 2 लाख रुपए का असाइनमेंट क्रेडिट अवेलेबल है इनपुट सर्विसेज का। मेरे पास 2 लाख रुपए का इनपुट सर्विसेज का, यानी कि रेंटल है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है साहब, मुझे इन सब चीजों का क्रेडिट अवेलेबल है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा सर मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा? 2 करोड़ की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ सेल है, 50 लाख रुपए की सर्विस है, 6 लाख रुपए की आउटपुट लायबिलिटी है, 2 लाख का क्रेडिट है।
नहीं डायरेक्ट नहीं है साहब, इनडायरेक्ट है, प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा सर। वही पूछ रहा हूं कितना मिलेगा? 50,000 रुपए टर्नओवर के रेशियो में। सर और कोई बताना चाहेगा आंसर? बस मतलब मैं क्लोज कर दूंगा आंसर, एक बार आप लोग भी कहते हैं हाँ सही आंसर है। सर आप लोगों को, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस कर रहा हूं, बताइए सर। सर आंसर देना चाहेंगे? नहीं? 50,000 रुपया फुल क्रेडिट, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं 50,000। 3 ऑप्शन हो गई, 4th ऑप्शन है सर नन ऑफ द अबव। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आंसर 4th ही सही है, आप सभी के आंसर गलत है। ध्यान दीजिएगा सर मेरी बात की तरफ। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? यह प्रोविजन आया था 2011 में, आज हम खड़े हैं 2015 में कहूंगा मैं, क्योंकि सर फरवरी आ गया, 28 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो 2011 के बजट में आया था ये। आपको मैं बताना चाहूंगा सर 4 साल बाद हम सभी लोग आंसर गलत दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा सर कि ट्रेडिंग के केस में जब हम सर्विस भी देते हैं, ट्रेडिंग भी देते हैं, क्रेडिट जो है वो टर्नओवर की रेशियो में नहीं होता है। उसके लिए एक फार्मूला प्रेस्क्राइब्ड है जो रूल 63A के अंदर दिया गया है। आप जरा चाहें तो नोट कर लीजिए, बता देता हूं सर। जब हम ट्रेडिंग करते हैं और सर्विस करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मैं जाते जाते कम से कम कुछ तो ऐसा बता जाऊं कि आप ऑफिस जब घर जाएं तो हम कहें कंट्रोवर्सीज, तो बहुत सारी बातें हो सकती है। कंट्रोवर्सी तो हम लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हैं तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है साहब। आज जो है सफाई वाला नहीं आया, कल वो नहीं आया, भाभी का फोन आता मेड नहीं आई, तो इसलिए जो है कंट्रोवर्सीज तो जो है चैलेंजेस तो हर जगह पे ही है। लेकिन कुछ अच्छा भी सीख जाए, कुछ अच्छा भी डिस्कस कर जाए, तो आप सर जरा नोट करिएगा। जब हम ट्रेडिंग और सर्विस की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशो जो होता है हमारा सैनवेट क्रेडिट के अंदर, जहां पर प्रोपोर्शनेट रेशो की बात की जाती है, उसका फार्मूला होता है, जरा नोट करिएगा। टैक्सेबल सर्विस किस रेशो में क्रेडिट मिलता है? एक तो होता है रिवर्स कितने में होता है, वो किताब में है रिवर्स कितना करना है, मैं बात कर रहा हूं मिलता कितना है, तो इसलिए फार्मूला उल्टा करके बता रहा हूं। टैक्सेबल सर्विस डिवाइडेड बाय एग्जम्प्टेड सर्विस प्लस टैक्सेबल सर्विस, यानी कि टोटल सर्विस, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग अलग करके बात कर रहा हूं। टैक्सेबल सर्विस डिवाइडेड बाय एग्जम्प्टेड सर्विस प्लस टैक्सेबल सर्विस इनटू सैनवेट क्रेडिट, यानी कि जो मेरा 2 लाख का क्रेडिट है इनटू 2 लाख। अब सब टैक्सेबल सर्विस तो आप सभी लोगों को पता है कि 50 लाख है, क्लियर है? सभी लोगों को पता है 50 लाख रुपए की टैक्सेबल सर्विस है। पर एग्जम्प्टेड सर्विस कितनी है? आप लोगों ने बोला 1.5 करोड़, यही तो बोला ना आपने, क्योंकि आपने कहा 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, तभी तो 25% बोला आपने। तो यानी कि आपने बोला एग्जम्प्टेड सर्विस जो है वो 1.5 करोड़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे, क्या ट्रेडिंग सर्विस होती है? नहीं होती है ना साहब। 2 हमारी नेगेटिव लिस्ट के अंदर उसको दिखाया गया, वो सब बातें कंट्रोवर्सी, फिर वही बात कंट्रोवर्सी में मैं बात नहीं करना चाहता, पर ट्रेडिंग इज नॉट ए सर्विस। तो इसलिए जब इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप हुई कि ट्रेडिंग जब सर्विस ही नहीं है तो फिर वो एग्जम्प्टेड सर्विस में कैसे आएगी, तो गवर्नमेंट ने हमारे को रूल 63A के अंदर एक फार्मूला दिया और उन्होंने कहा कि अतुल बात ठीक है कि ट्रेडिंग सर्विस नहीं है, जैसा कि सर ने कहा कि पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर जो कॉमन क्रेडिट है आपका 2 लाख का, वो आप ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं और सर्विस के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग को हम 2 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि ट्रेडिंग को हम 2 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे, और एक तो होगा हमारा ट्रेडिंग और दूसरा होगा एग्जम्प्टेड सर्विस। ट्रेडिंग को हम 2 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे, एक का नाम होगा एग्जम्प्टेड सर्विस, और वो एग्जम्प्टेड सर्विस कैसे निकालेंगे? वो होगा हमारा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जरा नोट कर लीजिएगा भाई साहब, कई बार सेमिनार में आके बताता हूं मैं आप लोगों को कि नोट करने से बाद में आपको रिफ्रेश करना हो तो आपके काम आ जाता है, वरना तो ऐसा ही होता है साहब। जैसे सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाके ऐसा लगता है, बताइए कई बार मैंने बात आपको कि महात्मा जी जो बोल रहे हैं वही सब कुछ बढ़िया, यही जीवन है, और सत्संग से बाहर निकले तो कौन सा जीवन, कौन से महात्मा जी। याद आता है भाभी जी ने कहा था भाई साहब ये नहीं लेके आए तो आज घर नहीं आना। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो नोट कर लीजिए सर। मैं तो महात्मा क्या सर, हम तो महात्मा जी के नखून के बराबर भी नहीं है, वैसे भी बनना भी नहीं है।
बड़ा खतरनाक हो चुका है महात्मा बनना। तो इसलिए जो है सर, मैं बता रहा था आपको, एग्जम्प्टेड सर्विस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रोस मार्जिन विच एवर इज हायर। क्या होगा हमारे इस फार्मूले के लिए? एग्जम्प्टेड सर्विस जो है निकालने का मेथड क्या है? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रोस मार्जिन विच एवर इज हायर। तो अब हम लोग मान के चले कि 1.5 करोड़ में, लेट अस से मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मैंने मैंने व्हीकल खरीदे थे और 1.5 करोड़ के बेचे थे। तो मेरा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर? 14 लाख। और ग्रोस मार्जिन कितना है? 10 लाख, विच एवर इज हायर। तो यानी कि मेरा इस पूरे बिजनेस के अंदर एग्जम्प्टेड सर्विस कितना बना? दैट इज 14 लाख रादर देन 1 करोड़ 50 लाख। तो मेरा फार्मूला क्या आएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 14 प्लस 50, एग्जम्प्टेड सर्विस प्लस टैक्सेबल सर्विस, दैट इज 64 इनटू सैनवेट क्रेडिट। मीनिंग देयर बाय, जहां पर आप लोग 25% क्रेडिट की बात कर रहे हो, मैंने वहां पर आपको इस फार्मूले से 80% क्रेडिट दिलाया। यानी कि 2 करोड़ का करीबन आपको 50/64 यानी कि वो 80% के आसपास निकल के आएगा, या 75 लगा लीजिए। तो आपका जो है वो 50,000 की जगह यू विल बी एंटाइटल टू क्लेम अ क्रेडिट ऑफ अराउंड 1,50,000 और 1,60,000। तो मोर क्रेडिट इज अ मोर क्रेडिबिलिटी एंड अ मोर फी। ठीक कह रहा हूं ना सर? तो आप लोग देखिए जरा, 3 साल से हम लोग ये गलतियां इस तरह की करते आ रहे थे। अब सर मैं आप लोगों को, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, एक छोटी सी स्लाइड मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए आगे चल के यूजफुल हो सकती है। सर जरा देखिएगा भैया, इसको फ्रेंड इसको पीपीटी पे कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। सॉरी, बस मैं नेक्स्ट 10 सेकंड्स में उस स्लाइड पे पहुंचता हूं सर। सर जरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस टेबल को अपने अपने पैड पे बना लीजिएगा। बाद में कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने का पूरा मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ है सर। हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए एक रियल लाइफ है कि हमारे पास क्लाइंट जो आता है वो किस किस तरह की सिचुएशन को लेके आता है। अगर आप इसको करेंगे तो हम मोर और लेस 80% 90% केसेस में रेशो एनालिसिस निकाल सकते हैं कि सनवेट किस रेशो में मिलना चाहिए, किस प्रोपोर्शनेट सिस्टम से हमें मिलना चाहिए। मैंने इस पूरे एग्जांपल के अंदर सर एक कोशिश करी है कि एक एसएससी है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ है, 2 करोड़ का उसका ट्रेडिंग का बिजनेस है, 2 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस है रेंट कैब का, मतलब अबेटमेंट वाला बिजनेस है जिसमें लिखा है कि सनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मेरी बात को समझिए पहले ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। 2 करोड़ रुपए का उसका वो बिजनेस है रेंट कैब वाला जिसमें लिखा है कि अबेटमेंट मिलेगी तो सनवेट नहीं मिलेगा। और 2 करोड़ के रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसमें डिडक्शन मिलेगी 60% की, पर क्रेडिट मिलेगा। 2 करोड़ का फिर उसका टैक्सेबल बिजनेस है कंसल्टेंसी का, और 2 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट की टर्नओवर है जिसपे उसको 0 रेटेड है, मतलब उस पे उसको सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करना है, पे नहीं करना है। अब इस सिनेरियो में जब मेरे एक एसएससी के पास इस तरीके से 10 करोड़ की टर्नओवर है, आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझ रहे हैं सर क्या कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं सर कि करीबन 10 बजे शुरू होने के बाद शाम के 5:15 बजे आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैं ये बात भी समझ रहा हूं सर, इंटरनेशनली 45 मिनट के बाद साइंटिफिकली भी बताया गया है कि डिमिनिशिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है। 7 घंटे बाद वो डिमिनिशिंग ट्रेंड कहां गया होगा, मैं ये बात भी समझ रहा हूं सर। तो इसलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना ज्यादा इसको लाइटर वे में आपसे डिस्कस कर सकूं करूं, रादर देन बहुत ज्यादा टिपिकली प्रेजेंटेशन बनाई और सारी चीजें डिस्कस करी। क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर एक आपके पास सिचुएशन ऐसी आए कि मेरे पास एक बिजनेस मैन आया, उसने कहा मेरी सर्विस है और ट्रेडिंग है, तो किस रेशो में मिलेगा? उसने कहा नहीं मेरी सर्विस है और अबेटमेंट वाली सर्विस है दूसरी, एक में अबेटमेंट है एक में अबेटमेंट नहीं है, तो किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा? उसने कहा नहीं मेरा कंसल्टेंसी का प्लस रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा? उसने कहा मेरी नॉर्मल सर्विस है और एक्सपोर्ट की सर्विस है, तो किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा? मैंने वो सारी सिचुएशनों को यहां पर हैंडल किया है। मैं जस्ट इन द नेक्स्ट 1 मिनट और 2 मिनट
मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूं आपको आंसर्स बता के। आप लोग इसके आंसर नोट करिएगा, बाद में आंसर कैसे पहुंचे हम, मैं अपनी तरफ से स्पीड से बता रहा हूं। जैसे कपिल जी सुबह आए होंगे AK-47 की तरह, तो मैं AK-47 की तरह से ही आपको 2 मिनट में आंसर बता रहा हूं। आप लोग देखिएगा कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दूसरे स्पीकर साहब ने भी बोलना है, आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो मैंने आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के अंदर फार्मूला तो पता है, टैक्सेबल सर्विस डिवाइडेड बाय एग्जम्प्टेड सर्विस प्लस टैक्सेबल सर्विस इनटू सैनवेट क्रेडिट। तो हमारे को क्या करना है, इन पांचों तरह के बिजनेस में टैक्सेबल सर्विस निकालनी है या एग्जम्प्टेड सर्विस का कितना अमाउंट कितना है, वी हैव टू क्वांटिफाई। ठीक है जी, ट्रेडिंग वाले में टैक्सेबल कितनी होगी, एग्जम्प्टेड कितनी होगी, रेस्टोरेंट वाले में टैक्सेबल कितनी होगी, एग्जम्प्टेड कितनी होगी, एंड देन द आंसर विल बी अवेलेबल कि किस रेशो में मुझे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है ना साहब। तो ट्रेडिंग में कितना आएगा टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड में, समझ में आ गया, 19 लाख आएगा। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन है 10 लाख का और 19 लाख मेरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 20 लाख नहीं सर, 19 लाख है ना सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल वर्ड यूज कर रहा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19 लाख हुआ, तो यानी कि एग्जम्प्टेड सर्विस में 19 लाख आएगा, टैक्सेबल सर्विस में तो नहीं आएगा। अब दूसरी बात करते हैं अबेटमेंट की। अबेटमेंट सर्विस जिसके अंदर बोला गया है कि आपको सैनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, और एग्जम्प्टेड सर्विस की डेफिनेशन में बताया गया है कि जिस सर्विस के ऊपर आपको अबेटमेंट मिलती है इस कंडीशन के साथ कि उस पर सैनवेट नहीं मिलेगा, वो सारी की सारी सर्विस आपकी एग्जम्प्टेड सर्विस होती है। दूसरा लॉजिकल आंसर दे रहा हूं, मान लीजिए मेरा रेंट कैप का बिजनेस है 2 करोड़ का और 2 करोड़ का कंसल्टेंसी का बिजनेस है, मुझे रेंट कैप पे क्रेडिट नहीं मिलता है, कंसल्टेंसी पे मिलता है, तो नॉर्मली आइडियली मेरा रेशो कितना होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, यानी कि 2/4। 4 का मतलब है 2 करोड़ मेरा एग्जम्प्टेड सर्विस में आएगा, तभी मेरे को ऐसा होगा ना साहब, पर्पस अचीव होगा। तो इसलिए रेंट कैप के बिजनेस में मेरी पूरी की पूरी टर्नओवर, चाहे मैं 40% पे टैक्स भी देता हूं, परंतु क्योंकि अबेटमेंट अलाउड नहीं के बाद क्रेडिट अलाउड नहीं है, सारा का सारा मेरा एग्जम्प्टेड सर्विस में आएगा। सर थोड़ा सा बस 5 मिनट, मतलब मेरी तरफ से, अगले स्पीकर की तरफ से नहीं, 5 मिनट और वो रहिए, पैशन में रहिए। मैं समझ सकता हूं सर 45 मिनट का रेशो जो है कहां तक जा चुका है। तीसरा है हमारा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बिजनेस में हमें अब डिडक्शन के बावजूद भी सैनवेट अलाउड है, लेकिन मेरी सर्विस की टर्नओवर कितनी है, 40% के हिसाब से 80 लाख है। ठीक है साहब, तो इसलिए मेरा 2 मुझे क्रेडिट अलाउड है, पर मेरी टैक्सेबल सर्विस केवल और केवल 80 लाख आएगी, ना कि 2 करोड़ की 2 करोड़ आएगी, क्योंकि उसमें 1 करोड़ 20 लाख ट्रेडिंग का पोर्शन है। फोर्थ, कंसल्टेंसी फुल्ली टैक्सेबल है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 2 एग्जम्प्टेड भी है, परंतु मेरे पास सर्कुलर नंबर 868/2008 के माध्यम से, सर्कुलर नंबर 868 ऑफ 2008 डेटेड 10th May 2008, और अब रूल 63A में ही लिखा है प्रोविजो में। ठीक है साहब, अब रूल 63A में ही आ गया है ये, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्ट होते हुए भी टैक्सेबल सर्विस कहलाती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैनवेट क्रेडिट। तो इसलिए अगर मैं इस तरह के बिजनेस में डील करता हूं, फाइनली मेरा जो रेशो आएगा वो ये आएगा। सर आप आंसर नोट कर लीजिए, बाद में थोड़ा सा वो करिएगा कि आंसर कैसे पहुंचा। मैंने कोशिश करी है जल्दी से आपको आंसर बताने की, कि अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा तो 19 लाख एग्जम्प्टेड आएगा, रेंट कैप में 2 करोड़ एग्जम्प्टेड आएगा, रेस्टोरेंट में 80 लाख टैक्सेबल आएगा, कंसल्टेंसी में 2 करोड़ का 2 करोड़ टैक्सेबल आएगा, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी 2 करोड़ टैक्सेबल में आएगा। तो प्रैक्टिकली जहां मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कम क्रेडिट मिलने वाला है, एक्चुअली में मुझे क्रेडिट मिलेगा 4.8 डिवाइडेड बाय 6.99, यानी कि अराउंड 70% क्रेडिट जो है वो मुझे इस केस में अपने एसएससी के लिए एलिजिबल क्रेडिट है, जो मैं ले सकता हूं। सो सर मैंने आप लोगों को कंक्लूड करने से पहले जस्ट बताना चाहूंगा, मैंने आप लोगों से जहां पर सर्विस टैक्स को एक मैक्रो व्यू दिया, मैंने आपको बर्ड आई व्यू दिया कि सर्विस टैक्स को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, मैंने आपसे कुछ इंटर रिलेटेड बातें करी, सैनवेट क्रेडिट से रिलेटेड या सर्विस टैक्स की पेमेंट से रिलेटेड, जहां पर आपको जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो क्रेडिट मिलता है, पुरानी इनवॉइस पे, नई इनवॉइस पे, 6 मंथ की लिमिट कैसे है, और फाइनली हमें रेशो निकालना हो तो हम किस तरीके से सैनवेट क्रेडिट का रेशो निकालते हैं, और इन केस अगर हमारा पेमेंट डिफॉल्ट में आता है
तो हमें उसको एडजस्ट कैसे करना होता है। जितना समय था उसके हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं उसे जस्टिफाई करूं और आप लोगों को कुछ मैसेज देके जाऊं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से लास्ट में करूंगा सर, 1944 में एक्साइज आया था, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स को देखते हो, एडवोकेट भाई साहब हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं कि 1944 में एक्साइज आया था। तो हम लोगों ने आज जब उसको पढ़ने के लिए, लेट अस से कि एक नया एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस शुरू करना चाहता है, वो कहता है भाई साहब 70 सालों में पता नहीं कितने नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जजमेंट आ गए, अब ये नहीं समझ सकता मैं। 1994 में सर्विस टैक्स आया तो हम लोगों ने बोला 3 सर्विस 5% टैक्स, ये बिजनेस करूंगा मैं, अब इसके लिए प्रैक्टिस करूंगा मैं। तो इसने बोला कि ये मेरी कप ऑफ टी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। 18-20 सालों में सर्विस टैक्स के अंदर भी इतने ओवरलैपिंग, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट, सर्कुलर, नोटिफिकेशन आ गए, फिर मुझे लगने लगा नाउ इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। फाइनली 1 जुलाई 12 के बाद जब से सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट रिजीम आई है, एक सी चेंज आया है और आने वाले समय में जीएसटी के अंदर एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक नई रिजीम को जन्म दिया जा रहा है। सर 8 लाख करोड़ के लिए 99% एनर्जी लगाते हो और 20 लाख करोड़ के लिए 1%। हमेशा बोलता हूं सर ये बात, कोशिश करिए इस 1% को 10% पे लेके जाइए। देखिएगा जितना स्टेटस आज की तारीख में आप लोग एंजॉय करते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, it will be equivalent in the indirect tax consultancy even by devoting 10% of your energy as compared to the 90% in the case of a direct tax. So with these words I convey my sincere regards, sincere thanks to each one of you कि आप लोग 10 o'clock से अभी तक जो है वो खींचते खींचते इसको 5:30 तक जो है वो हम सब लोगों को जो है वो सहन कर रहे हैं। I should say rather than a round of applause for me, it should be a round of applause for you, and thanks to the organizer for giving me this opportunity. Thank you. इनकी कोई आप सर हमारे पास एक क्वेरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑन रिटेंशन मनी केप्ट फॉर मोर देन 6 months. In case of retention we have not paid money, hence we can't take credit of and then reverse. आपके पास बिल आया 2 करोड़ रुपए का, आपने पेमेंट किया 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, मैं ये मान के चलता हूं 20 लाख रुपए आपने रिटेन कर लिया। सर्टेनली आपके ऊपर रूल 47 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल सिंस यू हैव नॉट पेड। लेकिन 6 महीने वाली कंडीशन मैंने जैसे आपको बताया कि आपने एक बार क्रेडिट ले लिया, बाद में उसको आप रिवर्स करते हैं ड्यू टू रिटेंशन, तो आप उसको जब भी पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट दोबारा मिल जाएगा। यानी कि आप फाइनली जब रिटेंशन मनी रिलीज करेंगे यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट एंड 6 month लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। उस टाइम पे आपको 6 महीने वाली लिमिट दोबारा नहीं देखनी है। एक बार आपने क्रेडिट अपने अकाउंट्स में ले लिया हो, अपने क्रेडिट के अंदर उसको आपने क्रेडिट कर दिया हो, देन आई एम सेइंग इन केस आप डेबिट करते हैं फिर रीक्रेडिट कर सकते हैं कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू मी इसमें एक लैक्यूना है, जैसे सर ने बोला कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट इसमें आप लोग भी जब उनकी तरफ से एक लैक्यूना है तो आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। वो लोग दे आर ट्रीटिंग दिस कंडीशन दैट यू मस्ट पे टू द वेंडर विद इन 6 months invoice wise. So they say you must have made the payment of the invoice and only then you can take the credit. So in your contract itself where you have put in for that retention clause, you can have a separate and specific clause saying that in every case, whenever you raise a bill, whenever you do a work, you have to prepare 2 bills. One bill you have to prepare for 90% of the work done for which payment shall become immediately due. Rest 10% you are eligible to issue a bill only at the end of the contract. If you do that, then your problem gets solved. Otherwise this problem is unnecessarily you are making the payment as per contract, still you do not get the credit. You can avoid this problem. And any other issue, sir? Sir, tax exemption to educational institution amendment in April 2013 and again July 2014. What is the position of transportation provided by school to students between April 2013 and July 2014? SS Gode साहब
सर ये कंट्रोवर्शियल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास पहले ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज थी स्कूल के द्वारा दी जाती थी, पहले था टू एंड बाय, यानी कि आई एम रिसीविंग द सर्विसेज और आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन जुलाई 2013 में, जैसे आपने बिल्कुल सही लिखा, अप्रैल 2013 में जो बाय वर्ड था उसको डिलीट कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो भी सर्विसेज मैं स्टूडेंट्स को देता हूं या अपने और किसी को भी देता हूं, लेट अस से फॉर सम एनी अदर एज वेल, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्सेबिलिटी बनती है। अब जो है वो जुलाई 2014 में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि वो बाय को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि जो बाय जो है वो करीबन 15 महीने के लिए वो गायब था। अब एक ही बात, दो बातें हैं सर, या तो गायब था, इसका मतलब टैक्सेबल है, दूसरी बात है कि क्या वो ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को दी, क्या वो सर्विसेज टू स्टूडेंट्स है? वो सर्विस की डेफिनेशन में भी आना चाहिए साहब, क्योंकि हम लोग जो है वो उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, या हम लोग जो भी हमारा सिस्टम है, तो वहां पर जाकर अगर ये आप बचा पाए कि जो है वो हम लोग जो है वो जैसे ट्यूशन फीस लेते हैं वो हमारी एग्जेम्प्टेड है, उसी का पार्ट एंड पार्सल है ये ट्रांसपोर्टेशन, तो अदरवाइज सर्टेनली 15 महीने के लिए कोई चीज गायब और बाद में रीइंट्रोड्यूस भी होती है, मीनिंग देयर बाय टैक्सेबिलिटी मे अराइज। पॉइंट ऑफ लिटिगेशन है डिपार्टमेंट, वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मेरे को इसके ऊपर लायबिलिटी बनानी है। दे हैव द अगेन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं आपको जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में। शुरू में एक इनिशियल पेमेंट दी जाती है 5-10 करोड़ रुपए की लैंड ओनर को, जस्ट टू सिक्योर हिज बिजनेस, सिक्योर हिज लैंड। तो उस 10 करोड़ रुपए के ऊपर आज की तारीख में डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपने लीजिंग ऑफ डेवलपमेंट राइट दिया, आपके पास जो लैंड का डेवलपमेंट राइट था वो आपने उसको लीज आउट किया डेवलपर को, तो इस पे टैक्स लगेगा। अगेन देयर आर टू थॉट्स कि ये जो है वो वास्तव में एक टैक्सेबल सर्विस है या 1 मिनट के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एडवांस पेमेंट है। 1 जुलाई 12 से पहले इस तरह की कोई सर्विस ही नहीं थी। तो डिपार्टमेंट में भी कई इश्यूज के ऊपर डुअल थॉट चल रही होती है, ये कह रहे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से 15 महीने का जो पीरियड है वो अंडर लिटिगेशन है, अंडर मतलब इसमें लिटिगेशन हुई नहीं है पर अंडर यू कैन से द कंट्रोवर्शियल है। एक तो ये कि इसमें कोई लिटिगेशन हुआ नहीं ऑफ कोर्स, एंड जो चीज नया लॉ आ गया एंड दे हैव क्लैरिफाइड देयर इंटेंट, दैट इज वन। सेकेंडली देयर इज अ नोटिफिकेशन 25/2012 में, आई थिंक देयर इज सीरियल नंबर 24(a) which says that transportation by a contract carriage otherwise than in cases of tourism conducted tour, charter or hire. So in this case, I once went through the provisions of the Rajasthan state transport rules and all, and I found that the school buses are under a special status in Rajasthan. राजस्थान में स्कूल बसेस को एक अलग से परमिट दिया जाता है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता, ना वो स्टेज कैरेज तो ऑफ कोर्स नहीं होता। But then we found out a judgment that is a special provision under the transport this thing, but वो फिर भी contract carriage होता है because that is under a contract. You have taken that carriage under a contract. Therefore, even prior to the intervening period, even if you do not get exemption because of that, whether it is an activity by school to the students for education, you can still get the exemption because in any case, even if the department says it is transportation of passengers by vehicle, it is still exempted because that was by way of a contract carriage and which was not a conducted tour or a tourism or charter or hire. Therefore, still you can get the exemption. So I think even before that, that position, we have taken that view that there is no taxability even for the intervening period. The next query is service tax registration taken. Basically क्या है साहब, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, टर्नओवर नील है, एंड क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस की सर्विस टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है। सर मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे देन लेट फीस कहें उसे, पेनल्टी कहें 20,000 रुपीज की, दैट विल बी देयर। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू यू इज द सर्कुलर नंबर 97/2007 पैरा 6.1। वो क्या कहता है साहब, circular number 97/2007 para 6.1, that in case your turnover is below threshold limit then it is not mandatory to file your service tax return। तो आपके पास जो ये सर्कुलर है 97/2007 का, दो हम 1 जुलाई 12 के बाद वो सर्कुलर वैलिड है या नहीं है, इस विषय पे हम लोग दोबारा कंट्रोवर वो कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर हम बात करें 30 जून 2012 तक के लिए,
तो ये सर्कुलर जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल था। मैं आज भी सर्कुलर को एप्लीकेबल मानता हूं, लेकिन जो है वो इस सर्कुलर के माध्यम से आप इसको ये प्ली ले सकते हैं कि फॉर ऑल रिटर्न्स सिंस द टर्नओवर वाज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, और आपकी जो है वो कंडीशन भी क्या है, अभी अगर पुनीत भाई भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे को बोला गया है कि इन केस यू हैव ए टैक्सेबल सर्विस देन यू हैव टू फाइल ए रिटर्न, इन केस योर टैक्सेबल सर्विस इज नॉट देयर एनीवे यू नीड नॉट टू फाइल योर सर्विस टैक्स रिटर्न। और यही बात एक तरह से सर्कुलर में बताई गई है, जो मैंने आपको सर्कुलर नंबर बताया, प्यारा नंबर बताया 6.1, कि इन केस आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है देन देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फाइल योर सर्विस टैक्स रिटर्न। यस, फॉर द फ्यूचर आई बिलीव दैट यू शुड फाइल अ रेगुलर रिटर्न इन केस यू आर हैविंग द सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, बट फॉर द ओल्ड यू कैन स्किप बाय वे ऑफ दिस टू एनालिसिस वी हैव गिवन। वही हम बता रहे हैं सर आपको, उस जजमेंट के हिसाब से ही बता रहे हैं सर, उसमें भी यही बोला गया है ना कि आपकी सर्विस ही टैक्सेबल नहीं है तो आपको टैक्सेबल सर्विस पे ही रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि लॉ में यही लिखा गया है। जी सर, सर कंट्रोवर्शियल जजमेंट, मतलब मैं आपको ये कहूंगा जजमेंट के लिए कि आपके पास झारखंड का आपका जो है जजमेंट, झारखंड का आपके अगेंस्ट है, केरला के, बॉम्बे का अगेंस्ट है केरला के। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, वही बता रहा हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है झारखंड ने और बॉम्बे ने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है वो दो अलग अलग जजमेंट है। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली मैं आपसे शेयर किया कि हम लोगों को जब इतना ज्यादा हम देखते हैं कि लगाएं या नहीं लगाएं तो लगता है इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने पूरे सेशन के अंदर आपसे वो सारी बातें डिस्कस ही नहीं करी जहां पर हम कुछ घर लेके नहीं जाएंगे। सर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको देखिए अगर आपको लिटिगेशंस में जाना है तो आप जाते रहें, पर एज ए बैलेंस अप्रोच फाइनली दो हाई कोर्ट्स ने आपके अगेंस्ट में डिसीजन दिया हुआ है। मतलब मेरी ओपिनियन, मैं पर्सनल ओपिनियन, जैसे पिछले सेशन में पूछ रहे थे सर उधर से, आप अपनी ओपिनियन बताइए, तो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, टैक्सेबल है। हाँ सर, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मैन पावर सप्लाई, कैन वर्किंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर एट प्रीमिसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर on machinery of manufacturer can be termed as manpower supply if work is working on piece rate basis। सर देखिए मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली आप लोगों को मैं मैन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल से क्लैरिफाई कर देता हूं कि कई बार ये कंफ्यूजन रहता है। क्यों रहता है? एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 40% वैल्यू पे टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज आएगा। मैन पावर सप्लाई होगा तो रिवर्स चार्ज आएगा, लेकिन अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। इस वजह से हमारे मन में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहीं हम कोई कंप्लायंस में कोई गलती तो नहीं कर रहे, ये मैन पावर सप्लाई है या ये लेबर को रेट है, क्या है ये। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों के पास बिल्कुल एकदम क्लियर करेगा आपके पॉइंट को। मुझे इस हॉल की कंस्ट्रक्शन करवानी है, मेरे पास 3 तरीके हैं काम करने के। एक, मैंने कहा कि अतुल आप एक काम करिए, विद मटेरियल इस काम को पूरा कर दीजिए, 5 करोड़ रुपए में विद मटेरियल आपने करना है। नाउ इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और मेरा सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होंगे। दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको बोलूं कि जी मटेरियल मेरा होगा, मटेरियल में सारा मैं दूंगा, आपको मैं 400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। इन दैट केस इट इज नॉट अ मैन पावर सप्लाई, क्योंकि मैं एम्प्लॉय मेरे सुपरविजन में काम कर रहा है, कितना लगा कितना नहीं लगा, वो कितने आवर्स की प्रोडक्टिविटी दे रहा है कितने की नहीं, दैट इज 100% मेरे कंट्रोल में है। इन दैट केस इट इज अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, will fall under the commercial or industrial construction service and there will not be any reverse charge and the rate of tax will be same 12.36%। लेकिन मैंने आपको तीसरे केस में यह बोला कि मैं आपको 100 एम्प्लॉइज 100 लेबर आपको सप्लाई कर देता हूं, मैं 300 रुपए पर डे के हिसाब से मैं आपको 100 आदमी सप्लाई कर देता हूं। इन दैट केस that is they are working under your supervision and control, in that case it will be a manpower supply services। तो आपको यह अपने कॉन्ट्रैक्ट को, हम लोग कभी भी सेमिनार के अंदर बोलते हैं, डिपार्टमेंट के भी लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एडवाइस देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए कि आप एसएससी का, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर का एग्रीमेंट जो है उसको आप जो है वो माइन्यूटली पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको ठीक से ड्राफ्ट करें, उसको ठीक से एनालाइज करें। Then only we will be able to reach on a conclusion कि whether it is a works contract, manpower supply or a labor contract falling under the commercial or industrial construction service। So friends, with this we have with us a very eminent and dynamic speaker। I will like take leave from Puneet ji and RK साहब।
for since my flight is there. Sir, last query है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की रिवर्स चार्ज 50% बाय कॉन्ट्रैक्टर 50% बाय कॉन्ट्रैक्टी वेदर सर क्या लिखा वेदर अवार्डर को कॉन्ट्रैक्टी को कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी इज लायबल टू पे फ्रॉम ऑन पॉकेट और ही कैन डिपॉजिट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर. सर बेसिकली ये आपका रिलेशन है. देखिए आपके पास दो ऑप्शन है 5 मिनट में खत्म हो रहा है. सर वो एग्रीमेंट की मैं बात अभी कर रहा था वही एग्जैक्टली है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है. अगर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूसिव है तो नेचुरल है आप डिडक्ट करेंगे अपना 50% जमा कराने के लिए और एक्सक्लूसिव है तो आप अपनी जेब से जमा कराएंगे. इट इज प्योरली बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर whether it will be inclusive of tax or exclusive of tax. So friends, with this I convey my sincere thanks to all of you. Thank you very much sir. सर ये वेब चेक इन हो गया सर. ये तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको. फ्लाइट का वेब चेक इन हो गया आपका. Sir, interest rate with effect from 1st of October has been raised to 30% on delayed period of tax payment of 1 year. This period of delay is to be counted from 1st of October. नहीं सर ये एक इलस्ट्रेशन भी उन्होंने डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है अगर आप उसके अंदर पढ़ेंगे. आई बिलीव TRU लेटर के अंदर ही उन्होंने दिया हुआ था या बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया है. ये पीरियड जो है वो आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैलकुलेट होगा. लेट अस से कि आपका जो है वो आज की तारीख में आपका जनवरी 2014 का टैक्स है और आप दिसंबर में जमा करा रहे हैं तो उसके ऊपर 11 महीने की डिले मानी जाएगी और वो नया प्रोविजन जो है 11 महीने का यानी कि 24% के हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ये 1 अक्टूबर के बाद का पीरियड अलग से नहीं देखा जाएगा कि 1 अक्टूबर के बाद 1 साल का डिले होगा तो 30% होगा. नहीं, दिस इज नॉट द केस. उन्होंने ये डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ है. आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट सर्कुलर नंबर या कहां पर किया था लेकिन इलस्ट्रेशन दे हैव गिवन इलस्ट्रेशन इवन बाय द दिस इज द इलस्ट्रेशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट. निकल रही है सर. कंक्लूड कराओ. थैंक यू सर. हाँ सर प्रिंट आउट ले रहा था आप. प्रिंट आउट एक दिए कर लो तो प्रिंट आउट लो और सर ये क्वेश्चन है मैंने अभी आंसर दिया सर इसका कि 1 मई 2014 की इनवॉइस है उसके ऊपर क्रेडिट आज मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैंने बताया सर ये 1 सितंबर से पहले की जितनी भी इनवॉइस है उस पर 6 महीने की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है सर. पुनीत जी हम लोग सही कह रहे हैं ना. आपकी ओपिनियन सेम है ना. हाँ तो 1 सितंबर 2014 से पहले वाली इनवॉइस पे हम सभी की ओपिनियन एक है जितने भी लोग सर्विस टैक्स में डिपार्टमेंट जा रहे हैं डील कर रहे हैं ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं कि 1 सितंबर से पहले वाली इनवॉइस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. आपको 6 महीने की लिमिट जो है वो उन्हीं इनवॉइस पे देखनी है जो इनवॉइस इशू है 1 सितंबर 2014 के बाद. उससे पहले वाली इनवॉइस पे 6 महीने की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. अजय जी आप अवेलेबल है यहाँ पे. ठीक है अजय जी क्लियर है. ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है. आप उसको 2 साल बाद लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट मेस. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया था 2 साल पुराना मेरा डेटर है. आज अगर वो मुझे बोलेगा तो वो बैड डेट की प्रोविजन में चला जाएगा. अगर मैं उसे आज फ्रेश इनवॉइस इशू करूंगा तो बैड डेट का मतलब कितना होगा. मार्केट में मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए डेटर्स में है तो प्रैक्टिकली 6,000 करोड़ का रिफंड जो है बैड डेट की वजह से डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा प्रोसेस करना पड़ेगा और आज की डेट में नहीं इनवॉइस इशू होंगी. सो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. दिस is applicable only for the invoices issued on or after 1st of September 2014. नहीं सर ये बोर्डिंग पास नहीं है. हाँ नहीं बोर्डिंग पास नहीं है. थैंक यू वेरी मच अतुल गुप्ता जी. वैसे तो करीब करीब सभी लोग जानते होंगे अतुल जी को. ही इज सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. वेरी एमिनेंट स्पीकर. have thorough command on the service tax matters and इनकी जितनी नॉलेज है उसका अपन कुछ फायदा नहीं ले पाए. इनको जाना है दिल्ली और टाइम की शॉर्टेज है. इनको पहले भी सुना है और बहुत ही हम लोगों ने अपनी नॉलेज को एनरिच किया है. सिंस ही हैज टू गो वी एक्सटेंड आवर थैंक्स टू हिम. कैन वी गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. जोरदार तालियां बजाएं अतुल गुप्ता सर के लिए. कल ये आगरा थे बहुत धुंध में विपरीत परिस्थिति में यहाँ पधारे हैं. आई एम रियली ऑब्लाइज सर. थैंक यू वेरी मच सर. हमारे नेक्स्ट स्पीकर
पुनीत जी अग्रवाल हैं. He is from Rajasthan, Jodhpur. He is chartered accountant, converted इधर आगे ले, आगे इधर as an advocate. निकलेगा. Yes, yes, it is his words. He is working on service tax matters up to Delhi High Court and even Supreme Court. Delhi High Court. Very eminent speaker. हम इनसे रियल एस्टेट एंड सर्विस टैक्स पे इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज दोनों ही सुनना चाहेंगे और उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी विल टेक द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज. पुनीत जी प्लीज. यहीं से बोलवा रहा हूं. टाइम बता दीजिएगा कितना. कपिल जी कटी ले ली क्या आपने? ले ली सर. नहीं टाइम और सब टाइम ज्यादा नहीं. ठीक, कोई प्रॉब्लम. हाँ, 10 minutes is enough for me. Thank you, sir, and a very good evening to all of you. Atul sir has already stated that it is really appreciable that even at 5:40 in the evening, so many of you are still there. So without taking much time, I have only two things which I decided to discuss. The theme of the presentation is Make in India. What is the role of tax professionals? When we say Make in India, the first thing is to build the real sector, the real assets, which is the real estate sector. And I have been very closely associated with the real estate sector. I have been working for some of the biggest companies in real estate. I have had that privilege. So I wanted to share two things, one on service tax and one on VAT, especially after the Larsen and Toubro larger bench judgment. I understand that tomorrow you shall be having a detailed discussion on those, but I would only highlight two issues which I faced and we were quite successful in getting whatever we wanted and which was a real problem. I would raise that problem before you and you might be facing that problem. Let's say in heart of Jaipur, I believe this is the most expensive area of Jaipur, sir? Very expensive. So maybe 5 lakh rupees per square feet or I don't know, 10 lakh rupees per square meter, sir? तो 5 लाख 15 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर. 15 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, sir, is the land price here at this place. And today someone is engaged to make a house on this area, in this area. 1000 square feet, sir, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, सर मेरी काउंटिंग तो बड़ी वीक है. 15 लाख 15 करोड़ 150 करोड़ रुपए का लैंड हो गया आपका. तो 15 lakh rupees per square meter and 1000 meter is the plot. On this plot, someone is asked to construct a residential house having 3 stories, assuming 3 stories for the ease of convenience. सर 1000 मीटर में कोई अच्छे से अच्छी कंस्ट्रक्शन भी करे तो 3000 रुपए आ जाएंगे. मैं उसको भी 5000 कर देता हूं फॉर सेक ऑफ डिस्कशन. सर 5000 रुपए और कवरेज 60% भी अगर मैं मान लूं तो 5000 रुपए इंटू 60%, विच इज 1000 का 60 600. सर थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज. मैं 1 मिनट आपको हिसाब लगा के बताता हूं. विच इज 5000 मल्टीप्लाई बाय 600. ये हो गया सर. दिस इज नहीं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो होता तो मैं बोल ही देता. सो दिस कम्स टू सर 30 लाख रुपीज पर फ्लोर एंड टोटलिंग 1 करोड़ रुपीज. 3 फ्लोर है सर, 90 लाख को मैं 1 करोड़ कर देता हूं. तो सर आप देखिए कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लैंड. वी ऑल रिकॉल 150 crores. And what is the construction value? Only 1 crore. Sir, what would happen? 150 crore, you add 1 crore, 151 crore. Assuming that person sells the flat for 55 crores each. 55 crores each. It comes to 165 crore. Sir, ये अभी theoretical नहीं रहा, ये practical है. दिल्ली में हमारे यहाँ पे 22, 25 करोड़ रुपए के फ्लोर्स बिक रहे हैं. तो मैंने इसलिए कोई बड़ा थ्योरेटिकल एग्जांपल नहीं लिया. अब इसको थोड़ा कम भी कर देंगे, सेम आंसर आएगा. 55 करोड़ रुपए का सर एक फ्लोर बिकता है. उसके अंदर सर एक फ्लोर पे सिर्फ 30 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि किसी ने बहुत दम लगाया कि मैं सब कुछ जकूजी भी इटली से ले आऊं और ये भी वो कर लूं, तब 5000 रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई. अदरवाइज 5000 अच्छे से अच्छे में भी नहीं आती.
Because what is the reason for selling at 55 crore? I think it is apparent. The reason is the short supply of that land. The land price is very high. अब मैं सर आपसे पूछता हूं, is construction of a complex a deemed service? It is a service, sir. You all know it is a service. इसमें किसी को डाउट है सर कि जब मैं कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट बुक करता हूं तो सेल करता हूं तो उस पर सर्विस टैक्स लगता है? Is everyone clear on that? Construction service, sir. It is called declared service. Section 66E, clause B. It says construction of a complex or a building for sale. So declared service includes construction of a complex for sale. So sir, when a developer, a builder is selling this one flat, he enters into an advance agreement. He says, look, this is the area, I have got this land. Tomorrow this Birla auditorium would be removed and tomorrow you would have a very nice house here. Would you like to book? And a very big person, he says, yes, I want to book. He pays 5 crore rupees as advance. Now, as soon as advance comes, you all know that service tax is to be paid on advances also. मेरे को लगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं. तो at that moment you have to determine whether service tax is payable. Sir, can I ask someone, would someone help me on what percentage you have to pay service tax? In case of sale of flats, sir, what is the percentage? Huh, sir? 3.09 if the flat value is less than 1 crore. If it is more than 1 crore, it is 3.6% plus cess, which comes to 3.9% something. So therefore, now look at the calculation, sir. 55 crore rupees of flat multiplied approximately 4%. I am not that good at maths. That's why I was converted from chartered accountant to advocate. 55 crore multiplied by 4% comes to 2.2 crores. Sir, what is the construction value? 30 lakh rupees. And what is the service tax? 2.2 crores. Is this a correct position in law? And for that, I want to take you back to the definition of declared service, which says construction of a complex for sale. They are not charging service tax on sale of immovable property. Please remember that. In fact, in the definition of service, section 65B, subsection 44, they have specifically excluded transfer of title in immovable property. And they have not stopped at that. They also say, we are also excluding transfer of title in those goods which are deemed to be sale and on which sales tax is payable. After Larsen and Toubro judgment, you all know कि इस फ्लैट में जितने मटेरियल यूज हुए उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी पे होना है. इसका मतलब this 55 crore is actually not 55 crore for the purpose of taxation. It has three elements. First, it has the immovable property, which is the land underneath this building. Second, it has the materials which shall be used in construction, which is considered to be a deemed sale, and sales tax is to be paid in hands of the developer. That I shall discuss in my second thing, which I shall discuss. I will only discuss two issues. Third, the element of construction service, which is subject matter of taxation under declared service, section 66E, subsection B. Construction of a complex for sale. So what is chargeable to service tax? It is only the service portion. And how do I derive that service portion? 55 crores comprises of three things: land, service and materials. Now if I go to the exemption notification, I have to pay service tax of 2.2 crore, whereas the whole construction is 30 lakh rupees. And out of that, it is very possible that 20 lakh is materials and 10 lakh is the value of service. On that 10 lakh, I have to pay 2.2 crores. Is this a correct position in law, sir? Can it happen? What is the rate of service tax? 12.36%. What is the service value? Only 10 lakh rupees. How can the service tax be 2.2 crores? The answer lies in the fallacy that we assume that by resorting to this exemption notification of 30% is mandatory. From where does this 30% rate comes? We have taken 3.9% as the rate. From where does it come? It comes from an exemption notification, जिसको हम traditionally abatements बोलते रहे. आपको ध्यान होगा पहले 1/2006 ST होती थी, अभी वो हो गई है 26/2012 ST. That is
a notification issued under the exemption powers of the government, and it starts by saying, in exercise of powers under section 93 of the Finance Act 1994, the central government being satisfied grants exemption from payment of service tax in excess of service tax as computed in columns below. So therefore it is under the exercise of powers of exemption that this 25% or 30% formula has been given. But in these kind of cases, this is not an exemption. If I apply this, it becomes a taxing power. And the courts have repeatedly and routinely stated that by way of exemption notifications, you cannot tax. And more important than that, exemption notifications cannot be mandatory at all. Though central excise law says, if it is a unconditional exemption, you have to take it, but service tax does not contain any such stipulation. So therefore, you have to reject this exemption notification, come back to the provisions of law, Finance Act 1994, again ask yourself a question, अगर मैं ये exemption ना लूं, तो normal route क्या था मेरे को service value करने का? और जब हमने उसको ढूंढा, तो हमें उसका आंसर मिला. Because सबसे अच्छी बात इस नेगेटिव लिस्ट वाले लॉ की है, इट इज वेरी एक्सप्लिसिट. सबसे पहले सर्विस में उसने डिफाइन कर दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें कवर नहीं होगी, वो गुड्स जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है वो इसमें कवर नहीं होगा. जब वो कवर नहीं हुआ तो बचा सिर्फ सर्विस पोर्शन, मुझे वो वैल्यू निकाल लेनी है. आप सब जिन लोगों ने भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस करी, आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से बाइफरकेट करना है. अगर वो नहीं है, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर सर्विस टैक्स लॉ खुद हमें जवाब देता है. सेक्शन 67(1)(3) जो वैल्यूएशन का प्रोविजन है वो ये बोलता है, इन केस द वैल्यू ऑफ सर्विस इज नॉट डिटर्मिनेबल, इन केस द वैल्यू ऑफ सर्विस इज नॉट डिटर्मिनेबल, देन प्लीज रिजॉर्ट टू द रूल्स. नाउ यू से भैया 55 करोड़ का फ्लैट है, मैंने तो अपनी कोई सर्विस इसमें ढूंढ के निकाली नहीं, मैं कैसे ढूंढूं इसमें कितनी सर्विस है? तो उसका सबसे आसान तरीका रूल 3 में चले जाइए और उसमें देखिए वो बोलता है कि उस सर्विस को अगर आप किसी और के लिए करते तो कितने पैसे लेते. अज्यूमिंग कि आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, बिना लैंड के भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप उस समय कितने लेते? 30 लाख लेते. तो वो 30 लाख के अंदर सर्विस एलिमेंट निकालना बहुत आसान है. सो देयरफॉर you need not, in case of such high value realty transactions, you need not go into that exemption notification. You may go to the normal provisions of valuation. उसमें से immovable property out करिए, goods की value out करिए, service portion के ऊपर tax दे दीजिए, अपनी books of accounts से उसको match करा दीजिए, and according to me that is enough. And why do I say that is enough? When there was a difficulty in Delhi, because Delhi में there are very high valued properties, we made a specific representation to the commissioner, because we don't want कि कल को वो हमारे पास आके बोले कि तुमने suppression किया. That is the main object of ours. So what we did, we stated, this is our understanding of the law. Exemption notification can certainly not be imposed upon me. I don't want to go to the exemption notification. According to me, this is the method of computation and I am paying service tax on this. At association level we wrote and we met them. And after 1 year, I have seen that they have not been able to answer and we have been doing it. And therefore we are very happy we have been following this procedure. And this is especially important in all those cases where the service value in comparison with land price first is very low, and secondly where the prices are negotiated lump sum. Generally high value properties ये negotiate lump sum में होती है कि साहब कितने का 50 करोड़. टैक्स वैक्स हमें नहीं पता भाई 50 करोड़ के अंदर आप सब कुछ आपका इस तरीके से जनरली आर नेगोशिएटेड. सो इट बिकम्स अ कॉस्ट ऑन द बिल्डर. इफ दिस मेथोडोलॉजी इज अडॉप्टेड, इट इज क्वाइट बेनिफिशियल, व्हिच आई वांटेड टू शेयर. सर अब मेरे को ये मिला है, मैं एक और इशू डिस्कस कर लूं या नहीं करूं? सर कल्चरल वाले करेंगे क्या? एक ही और इशू है बस, आप कहें तो कर लूं, नहीं तो कितना टाइम का है? 5 मिनट. जैसे एक 5 मिनट में हो गया वैसे 5 मिनट. 5 मिनट में खत्म करें सर? हाँ बिल्कुल कर दे सर. दूसरा इशू क्या है सर? अभी लार्सन एंड टूब्रो का जजमेंट आया. आपको सबको मालूम है उसकी ज्यादा भूमिका दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि आप नहीं हुआ तो मैं खत्म कर दूंगा, माइक ही बंद हो जाएगा सर. सो लार्सन एंड टूब्रो ने सर क्या बोला कि अगर कोई बिल्डर एडवांस में एग्रीमेंट करता है सेल का, फ्लैट का, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उसके अंदर सेल्स टैक्स लगेगा. जैसे ही ऐसा बोला तो डिपार्टमेंट वॉज वेरी हैप्पी. द डिपार्टमेंट वॉज हैप्पी एज इफ इट हैज गेन्ड समथिंग वेरी ग्रेट. बट सर यही एग्जांपल जो मैंने लिया, इसी में अगर हम समझें तो डिपार्टमेंट को कोई बहुत बड़ा गेन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं.
सर डिपार्टमेंट को क्या लगता है, शुरुआत से आप लोग जितने भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा काम कर रहे हो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है टैक्स कंप्यूट करने का, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 30 लाख रुपए इसमें अगर सर्विसेज कंस्ट्रक्शन का वैल्यू है 30 लाख रुपए का वैल्यू ले लो, इसमें से आप लेबर एंड सर्विसेज माइनस करते जाओ, तो बचेगा क्या, मटेरियल, उस पर आप सेल्स टैक्स दे दो। लेकिन ये तो वो वाले केसेस थे जहां ही वाज अ प्योर कॉन्ट्रैक्टर, बट नाउ लार्सन एंड टुब्रो सेज वी आर डीलिंग विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 55 crores which not only includes value of services and material but also includes a very very important portion which is land. अब प्रॉब्लम क्या हुई, टैक्स तो अभी भी सर किसमें लगना है, वैट पे, मटेरियल पे लगना है। सर मटेरियल की वैल्यू बदल गई, अगर ये 55 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो, मटेरियल तो अभी भी वही 30 लाख के हैं, 30 में से 20 के हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि डिपार्टमेंट इज स्टिल वांटिंग टू गो बाय दैट मेथड, जो उल्टा पुल्टा मेथड था, आई कॉल इट अ उल्टा पुल्टा मेथड, एंड दे वुड से वी विल स्टार्ट फ्रॉम 55 करोड़। 55 में से हम क्या माइनस करेंगे, हमारे लॉ में लिखा हुआ पहले लेबर एंड सर्विसेज माइनस करेंगे, वो कितनी है, सिर्फ 10 लाख, तो बचा कितना, 5 करोड़ 40 लाख, अभी भी 55 में से 54 करोड़ 90 लाख अभी भी बच गया। उसके बाद उनसे पूछा गया भैया लैंड पे टैक्स लगाओगे, कह रहे नहीं लगाएंगे, तो नहीं, फिर क्या करोगे, आपकी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आ रही है, तो उन्होंने बोला भैया ये बिरला वालों ने 70 साल पहले खरीदी थी, 5 लाख रुपए की बैलेंस शीट में वही वैल्यू आ रही, अच्छा ठीक है 5 लाख माइनस कर दो। सर आई एम नॉट जोकिंग, we filed 40 writ petitions in the Punjab and Haryana High Court, and after seeing this is what is happening there, honorable judges were even gracious enough to grant a stay on notice stage. And what happened, the department has given in writing that ये क्या बात कर रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम लैंड की वैल्यू माइनस कर तो रहे हैं। on what basis उनसे पूछा गया, रिटर्न एफिडेविट में they have given on the basis of amount recorded in books of accounts। सर यहां सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, उनसे कोई पूछे भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो सर वो बोलते हैं 55 करोड़ माइनस 10 लाख इज वैल्यू ऑफ सर्विसेज माइनस 5 लाख इज वैल्यू ऑफ लैंड, 54 करोड़ 85 लाख पे हम वैट लगाएंगे, और आपकी मटेरियल की वैल्यू कितनी थी सर, 20 लाख रुपए। तो सर therefore we had to go to the High Court, now the order is reserved there, but we are expecting that High Court would pronounce that this ulta pulta method would not be available to you, because ultimately the value has to only of materials, you cannot by way of taxing material you cannot tax immovable property, the state cannot do it, GST आ जाएगा तब सर बात दूसरी है। इसमें सर मैं आपको एक सेफगार्ड बताना चाहता हूं, और ये ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि उल्टा पुल्टा मेथड करे बिना वो मानेंगे नहीं, उन्हें 25-30 साल से आदत पड़ी हुई है उल्टा मेथड लगाने की। सर सुप्रीम कोर्ट ने लार्सन एंड टुब्रो के एक अदर केस में बोला था, विच इज 17 VST1, जो मैं अभी बात कर रहा हूं लार्जर बेंच, दैट इज 65 VST1, दैट वाज 17 VST1, उसमें उन्होंने बोला था अगर आप अपना काम सब कॉन्ट्रैक्टर से कराते हो और सब कॉन्ट्रैक्टर टैक्स दे देता है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सर इतने पचड़े में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया कि भैया इतना बड़ा काम करते हो, कंस्ट्रक्शन तो दूसरों से कराते ही हो हर केस में, तो जो छोटा मोटा सीमेंट स्टील भी खरीदते हो वो तुम मत खरीदो, सारा का सारा काम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, लेट हिम परचेज सीमेंट स्टील, लेट हिम पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, एंड देन आराम से सो, चैन की नींद सो, 5:30-6 बजे के बाद थक हारने के बाद आराम से नींद सो। और सर हर एक स्टेट के अंदर, मैं दिल्ली के एक्सेप्शन को बता रहा हूं, राजस्थान के प्रोविजन, आई एम वेरी सॉरी मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ नहीं पाया, लेकिन हर एक स्टेट में, यूपी में, हरियाणा में और आंध्र प्रदेश में एंड इन पंजाब देयर आर प्रोविजंस व्हिच एक्सप्रेसली स्टेट दैट व्हाटएवर इफ tax on that contract has already been paid by a subcontractor, the main contractor need not pay the tax. So therefore if you want to say, एक मिनट सर, if you want to safeguard your liability still, first he cannot tax you on a ulta pulta method at all, that is absolutely wrong, it cannot be done। मैं आपसे बहुत सारी और nuances बात कर सकता था टाइम होता तो, लेकिन he cannot, according to me he cannot, there are several infirmities, he cannot। Second, don't give him a chance to do it, गिव फुल सब कॉन्ट्रैक्ट, सारे मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, वो टैक्स लगाएगा, आप चैन से सोइए। सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप माय डिस्कशन, क्वेरी जो भी हो वो आप डिस्कस कर लें। ये 3 क्वेरी मेरे सामने जो आई थी इसमें मैं थोड़ा सा आंसर जरूर देना चाहता हूं। इंटरेस्ट के लिए किसी ने पूछा था कि इसमें पुराना केस में इंटरेस्ट के लिए 1 साल काउंट होगा कि नहीं होगा, उसमें मेरा व्यू सर ये है
ये लॉ रिट्रोस्पेक्टिव सर्टेनली नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सेक्शन के अंदर रेट नहीं लिखा हुआ। सर ऑर्गेनाइजर्स को बोल दीजिएगा जब चाहे बंद कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर रेट नहीं लिखा हुआ सर, रेट नोटिफिकेशन से आता है, और नोटिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इशू करने की जब तक पावर ना हो सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इशू नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, रेट्रोस्पेक्टिविटी का मतलब क्या है? सर जिस दिन से रेट इंक्रीज हुआ उस दिन के बाद का जो इंटरेस्ट है वो नए रेट पे लग सकता है, लेकिन उस दिन के पहले का इंटरेस्ट, हो सकता है आपने 2 साल से टैक्स ना दिया हो, जो पीछे का इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं हो सकता, जो आगे का इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जो आगे का इंटरेस्ट है मैं रेट कौन सा लगाऊं, जो डिले है वो कैसे काउंट करूं? तो सर उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव का मतलब इंटरेस्ट, जो नया प्रोविजन है वो क्या बोलता है, अगर 2 साल बीत गए तो शायद 30% का रेट बोलता है, अगर 2 साल बीत गए आपकी डिले को तो 2 साल लगेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट उस दिन के बाद अगर 2.5 साल की डिले है तो लगेगा तो 30, लेकिन पिछले पीरियड के लिए नहीं लगेगा। जो पीछे का पीरियड निकल गया, जो उस अमेंडमेंट के आने से पहले, उसमें वही पुराना 18% का लगेगा। दिस इज माय व्यू बेस्ड अपॉन द लीगल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, आप लोगों ने किसी ने पूछा था 6 महीने के क्रेडिट के केस में जो पुरानी इनवॉइस है उनका क्या करें? उसका आंसर मेरे हिसाब से है, सुप्रीम कोर्ट ने सर एक पुराना जजमेंट है डाइची करकारिया, जस्टिस भरूचा और चीफ जस्टिस, ही स्टेटेड दैट सनवैट क्रेडिट इज अ वेस्टेड राइट एंड इट गेट्स वेस्टेड व्हेन अ पर्सन अवेल्स ऑफ दैट गुड्स। सो देयरफॉर जैसे ही आपके पास गुड्स आ गए, आपने क्रेडिट लिया या नहीं लिया, वो वेस्टेड राइट हो गया, तो उसको 6 महीने वाला प्रोविजन टेक अवे नहीं कर सकता। लेकिन सर ये बहुत ही डिस्प्यूटेबल सब पोजीशन है, आप प्लीज क्रेडिट ले लीजिए, ये सवाल पूछने का फायदा ही नहीं है, आप ये क्रेडिट ले लीजिए। दिस इज सर्टेनली अ इशू व्हिच इज अमेनेबल टू डिस्प्यूट। व्हाटएवर यू कैन प्लीज टेक द क्रेडिट एंड फिनिश थिंग्स ऑफ, दैट इज माय व्यू। उसके अलावा सर किसी ने एक क्वेरीज पूछी नहीं, मैं नीचे आप लोगों को सारे जवाब दे दूंगा। एक आप मेरे से यहां से कोई पूछ रहे थे, बताएं सर लास्ट। हाँ अच्छा अच्छा ओके हाँ ओके ओके, नहीं हो सकता राजस्थान में लगे सर, मैंने इसीलिए माफी चाहिए थी, मैंने वो प्रोविजन राजस्थान का मैं पढ़ नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो राजस्थान के बाहर का कुछ काम कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 17 VST में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो उन्होंने उसको प्रोविजन के बेसिस पे नहीं बोला था, उन्होंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोला था। बट अगर आपके यहाँ प्रोविजन वो नहीं है तो मैं कॉन्सेप्ट लगवाऊं, प्रोविजन कुछ और है, वो झगड़े वाली बात है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बिना प्रोविजन देखे बोल रहा हूं, ठीक है। सो I thank the organizers, I thank each one of you from the core of my heart for giving me such a patient hearing. Thank you. और कोई भी आपके सवालों में थोड़ी देर यहाँ हूं, आप मेरे से पूछ लीजिए। 1 मिनट साहब। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, आप सबकी तरफ से, मेरे तरफ से, पुनीत जी से पहले माफी मांग लेते हैं कि आप लोगों को जो देना चाहते थे टाइम कांस्टेंट की वजह से पूरा नहीं दे पाए। बहुत बढ़िया कमांड है इनका इस सर्विस टैक्स के ऊपर और इतने बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन अपने पास ही अपनी प्रॉब्लम्स है कि अपन इनका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। ये इतनी दूर से आए भी हैं अपने को एजुकेट करने के लिए। वी आर रियली ऑब्लाइज सर। फ्रेंड्स, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, सर्विस टैक्स में मेरे को बुला बुला करके यहाँ पे बिठा देते हैं और वो आखिरी का सेशन होता है। अभी इनकी ऑर्गेनाइजर्स की मेरे से दुश्मनी है या इस सब्जेक्ट से दुश्मनी है, समझ में नहीं आती मेरे को। लेकिन ये बात सही है कि प्रैक्टिस करने के लिए इससे बढ़िया फील्ड अब कोई नहीं बचा है। इनकम टैक्स सारा का सारा ऑनलाइन होकर के केवल फिगर्स भर दो, कुछ भी नहीं है। एक एक प्रोविजन में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, अगर आप जितना डूबेंगे उतना का उतना ऊपर तिर करके आएंगे। इट्स ए हाईली रिवार्डिंग सब्जेक्ट फॉर आवर वर्किंग। और ये जो पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि पहले तो 10-5 लोग हुआ करते थे, फिर 150 हुए, मेरे ख्याल में अब 200-300 के आसपास तो इस ऑडिटोरियम में है। इसका मतलब ये रेशियो इंप्रूव तो हो रहा है। ऑर्गेनाइजर्स को मैं, दो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी,
लेकिन एक फॉर्मल मान लीजिए. आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स फॉर कीपिंग दिस सेशन on service tax, inviting both of the highly learned speakers. We got the benefit of their presence here, their delivery here, and I, my own behalf and on behalf of all of you, feel very happy for having this session. Thank you very much. Now you are going to with your family to come back here for the next, that is cultural program. Thank you very much. फर्स्ट अनाउंस था नहीं. थैंक यू सर. एंड इसी के साथ हम लोग वापस रिपीट करेंगे. श्री कमलकांत गुप्ता जी अगर वो यहाँ पे है, श्री डी.के. अग्रवाल जी एंड श्री सुमित अग्रवाल एवं कल्याणमल अग्रवाल जी अगर वो यहाँ पे हैं तो वी रिक्वेस्ट देम टू कलेक्ट देयर गिफ्ट्स. रतन गोयल जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रतन गोयल जी को कि वो जीडी बंसल जी को वो स्टेज पर आए और हमारे लकी ड्रॉ विनर्स को फेलिसिटेट करें गिफ्ट से. इस बार का लकी ड्रॉ लोगों को पहले ये 3 दे देते ना. लोगों को रोको. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप प्लीज यहीं पे बने रहिए. वी हैव अनदर लकी ड्रॉ टू बी विद. सर दो. थैंक यू. थोड़ा सा सेंटर में आ जाए. प्लीज आप यहाँ बने रहिए, हम एक इस सेशन का लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं. प्लीज. कमलकांत गुप्ता जी, डी.के. अग्रवाल जी, डी.के. अग्रवाल जी. हाँ जी, सुमित अग्रवाल, कल्याणमल अग्रवाल जी अगर वो यहाँ पे है तो प्लीज आए. तो कैन वी स्टार्ट विद द लकी नेक्स्ट लकी ड्रॉ. तीन. श्री मनोज रूडवाल जी अगर वो यहाँ पे है तो स्टेज पे आए. एक मिनट नहीं है. नहीं है. मनोज रुनवाल, मिस्टर मनोज रुनवाल, वेरी गुड. आ जाओ, दे दो हाथों हाथ. कम प्लीज. कंग्रेचुलेशन सर. दो. थोड़ा उधर ही नेक्स्ट सर. ओके. श्री विनोद पाटिल. श्री विनोद पाटनी जी. विनोद पाटनी जी फ्रॉम जयपुर. सर अलाउड ही नहीं अपने को. हाँ, कहाँ है? नहीं है. विनोद पाटनी जी नहीं है यहाँ पे. सर एक और निकालो. श्री गणेश लाल कुमावत. श्री गणेश लाल कुमावत स्टेज पे आए. एक और निकालो. अच्छा विनोद पाटिल तीन और निकाल दो ना, ये भी तो बचे हुए. स्किप कर जाएंगे. नहीं. अनिल कुमार जी. कंग्रेचुलेशन सर. We have a last consolation winner also. श्री अनिल कुमार जैन. श्री अनिल कुमार जैन जयपुर से. नॉट हियर. अनिल कुमार जैन जी नहीं. श्री एलएम लोढ़ा जी. आई एम लोढ़ा एंड कंपनी से. आई एम लोढ़ा एंड कंपनी से जी. अनिल कुमार जैन जी. आई एम लोढ़ा एंड कंपनी. आई एम लोढ़ा एंड कंपनी. आप दोनों ही हैं? नहीं, वो अनिल कुमार जैन है. चित्तौड़गढ़. ओके. अनिल कुमार आए नहीं आप. चलो कोई बात जी. नहीं. कंग्रेचुलेशन सर. Thank you. With this, we request you to be assembled here with your family at 7:30, and tomorrow we will be starting the program at 9:15. Thank you once again.